Hi friends and welcome to my channel in Dr. IMP questions. If my new friends doing preparations about of TGT, PGT, KVS, NVS, Assistant Professor, LT, etc. that you will found most important question in my channel. So without wasting the time, I starting my video. This video is part number 4 from the topic of bryophytes, and in this video the first question is that question number 74, and in this question we have been asked that एपोफाइसिस इज प्रेजेंट इन एपोफाइसिस पाया जाता है ए पाइनस, बी मोस, सी सिलेजिनेला और डी फर्न. एंड दिस क्वेश्चन हैज़ बीन पुट डाउन पीजीटी बायोलॉजी 2005. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड प्लीज़ डू कमेंट अबाउट ऑफ क्वेश्चन नंबर 74. Okay, in this question the correct answer will be option number 2, mosses. If my anyone friends who are interested to check the details about of anyone questions, that you can pause this video and check the details. Second question is that question number 75, bryophytes can be separated from algae because they bryophytes को शैवाल से अलग किया जा सकता है क्योंकि A have one thalloid form, B have no conducting tissue, or C possess archegonia with outer sterile cell, or D contain chloroplast. And this question has been put down PGT biology 2009. So it is very important question, and please choose one option from the question number 75. In this question answer will be option number C, possess archegonia with outer sterile cell. Okay, question number 76. And in this question we have been asked that the main plant is gametophytes. युग्मोद्भिद पौधा होता है ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म, और ऑप्शन नंबर डी एंजियोस्पर्म. एंड this question also has been put down PGT biology 2010. So it is very important question. Please choose any one option from the question number 76. In this question answer will be option number A, bryophyte. Our next question, question number 77. The amphibians of plants kingdom are A, bryophytes, B, pteridophytes, C, gymnosperm, और D, angiosperm. और ये क्वेश्चन पीजीटी बायोलॉजी 2010 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन. सो वेरी इंपॉर्टेंट. और आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 77 के बारे में. तो इसमें इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, ब्रायोफाइट्स. आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 78. एन एक्वेटिक ब्रायोफाइटस इज, and this question has been put down PGT biology 2010. So it is very important question, and in this question option number B will be correct answer. Okay, our next question, question number 79. Number 79 में हमसे पूछा गया है name the bryophyte where the gametophyte contains intercellular mucilaginous cavities containing blue green algae. उस ब्रायोफाइटों का नाम बताइए जिसके युग्मोद्भिद में अंतरकोशिका श्लेष्मिक गुहाओं में नील हरित शैवाल पाए जाते हैं. फ्यूनेरिया, बी एंथोसिरोस, सी पेलिया, और डी मॉर्गेंसिया. और ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 1999 में पूछा गया क्वेश्चन. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो आप लोग कमेंट कीजिए क्वेश्चन नंबर 79 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, एंथोसिरोस में. और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 80. और 80 क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है presence of Calyptra, operculum, annuals, a peristomyle teeth are characteristic of the sporophyte of. किसके बीजाणुद्भिद में प्रच्छद ढक्कन, पेरिस्टोमिया दंत और वलय की उपस्थिति मुख्य लक्षण है? एंथोसिरोस, मॉर्गेंसिया, या सीपेलिया, और डी फ्यूनेरिया. एंड दिस क्वेश्चन आल्सो हैज़ बीन पुट डाउन टीजीटी बायोलॉजी 1999. सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. प्लीज़ चूज़ एनी ऑप्शन इन द क्वेश्चन नंबर 80. और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, फ्यूनेरिया में, ऑप्शन नंबर डी. और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 81. और क्वेश्चन नंबर 81 है ए वेंटर इज ए पार्ट ऑफ स्पोरोफाइट, स्पोरेंजियम, एंथ्रीडियम, और फिर और आर्चिगोनियम. ये क्वेश्चन भी टीजीटी बायोलॉजी 2002 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन, और इसका आंसर भी होगा ऑप्शन नंबर डी, आर्चिगोनियम का. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82.
प्रोटोनिमा इज फाउंड इन लाइफ साइकिल ऑफ, प्रोटोनिमा पाया जाता है इसके जीवन चक्र में। ऑप्शन ए स्पाइरोगायरा, बी राइजोपस, सी फ्यूनेरिया और डी ड्रायोप्टेरिस। और ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2004, एल्टीग्रेड बायोलॉजी जीएससी 2012 एंड झारखंड पीजीटी 2014 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 82 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी फ्यूनेरिया के अंदर। और क्वेश्चन नंबर 83 में हमसे पूछा गया है फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन इन फ्यूनेरिया एंड रिक्सिया आर, फ्यूनेरिया और रिक्सिया में महिला प्रजनन अंग है। इसके ऑप्शन है ए एंथ्रीडिया, बी आर्चिगोनिया, सी एंथ्रीडियोस्पोर और डी आर्कियोजेनिस्पोर। और ये क्वेश्चन भी टीजीटी बायोलॉजी 2004 के अंदर पूछा गया है क्वेश्चन। सो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 83 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी आर्चिगोनिया। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84, एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन आस्क्ड दैट which of the following is the aquatic species of Rixia? A. Rixia discolor, B. Rixia himalayensis, C. Rixia crystallina or D. Rixia flutans. And this question also has been put down TGT biology 2005, 2010, 2013. So it is very very important question. Please choose any option from the question number 84. और इसमें ऑप्शन नंबर 4 करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 86। और 86 में हमसे पूछा गया है इन गैमेटोफाइटिक फेज ऑफ ब्रायोफाइटा द लास्ट सेल इज गैमिट, बी स्पोर, सी लेटर, डी जाइगोट। और ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। सो इस दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट। इसका आंसर होगा ए गैमिट। आवर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87, एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन आस्क्ड दैट इन फ्यूनेरिया द कैलिपेट्रा इज फॉर्म्ड बाय, फ्यूनेरिया में गोपक का निर्माण होता है। ए एंथ्रीडियम, बी कोल्यूमेला, सी कैप्सूल और डी आर्चिगोनियम। एंड दिस क्वेश्चन also has been put down TGT biology 2009, so it is important question. You please choose any option from the question number 87. तो 87 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी कैप्सूल। So let's proceed to further question. Question number 88. A bryophyte differ from pteridophyte in A. Archegonia, B. Lack of vascular tissue, C. Independent gametophyte और D. None of these. और ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। तो आप लोग कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 88 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी लैक ऑफ वेस्कुलर टिश्यू। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 89। और क्वेश्चन नंबर 89 में हमसे पूछा गया है ब्रायोफाइटस आर ए एक्वेटिक, बी टेरेस्ट्रियल, सी एम्फीबियंस और डी नॉन ऑफ दीज। और ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2009 में पूछा गया क्वेश्चन। आप लोग भी कमेंट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी एम्फीबियस। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 90, एंड इन दिस क्वेश्चन वी हैव बीन आस्क्ड दैट स्पोरोफाइट इज डिपेंड ऑन गैमेटोफाइट इन ए एल्गी, बी टेरिडोफाइट, सी फंजाई और डी ब्रायोफाइट। And this question also has been put down TGT biology 2009, so it is very important questions. Please choose any one options from the question number 90. In this question option number D bryophytes will be correct answer. Our next question, question number 91, and in this question we have been asked that multicellular rhizoids with oblique septa are found in A. Anthoceros, B. Funaria, C. Rixia or D. Markensia. This question has been put down TGT biology 2010, so please choose any one option from the question number 91. तो इसमें आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी फ्यूनेरिया में। और नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 92। और क्वेश्चन नंबर 92 में हमसे पूछा गया है विच ऑफ द फॉलोइंग इज डायोसियस स्पीसीज, निम्नलिखित में से कौन एक लिंग स्त्री जाति है। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी रिक्सिया हिमेलियंस। और ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2010 के अंदर पूछा गया क्वेश्चन। नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 93। और इसमें हमसे पूछा गया है विच पार्ट ऑफ फ्यूनेरिया इज हैप्लॉइड, फ्यूनेरिया का कौन सा भाग अगुणित है। कैलिपेट्रा, कोल्यूमेला, ओपरकुलम और एन्यूल्स। ये क्वेश्चन टीजीटी बायोलॉजी 2010 के अंदर पूछा गया उस क्वेश्चन। तो इस दृष्टि से काफ़ी इंपॉर्टेंट।
इसका आंसर होगा ए कैलिपेट्रा। Our last question, question number 94. In this question, we have been asked that anthrozoids of Rixia are A. monoflagellate, B. biflagellate, C. quadriflagellate, or D. multiflagellate. And this question also has been put down TGT Biology 2011. So it is very important question. Please choose any one option from the question number 94. और इस क्वेश्चन का आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, बाइफ्लैजिलेट, द्विकोषाभिकी। ओके दोस्तों, आज की वीडियो में इतना ही। और ब्रायोफाइटस से जुड़े काफ़ी सारे और अन्य क्वेश्चंस की श्रृंखला आपको इसकी नेक्स्ट वीडियो में प्रोवाइड की जाएगी। आपको वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ नमस्कार।